कॉम्बिनेशन 2022-2023, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2026 वाला कॉमर्स का पेपर कॉम्बिनेशन 2022-2023 कॉम्बो जाएगा। जिसके पास 2022-2023 के पेपर्स नहीं है मुझे बता देना, कॉम्बो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्बो जाएगा। आईएससी कॉमर्स 2026 का पेपर 27 फेब को होना है, कॉम्बो जाएगा। 2022-2023 का कॉम्बो मिक्स्ड होंगे, उसको एक बार ध्यान से देख के चलिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसी में से पेपर के आने की। 2022-2023 का पेपर मैं पोस्ट कर दूंगा। अरे यार, लाइक वाइक कर दिया करो कोई तो, मेरे को खुद ही करना पड़ता है, मैं लगा हूँ यहाँ मेहनत करने में, ठीक है? तो सबसे पहले ये देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? फिर आप लोग बाद में मुझे मत बोलना यार सर पेपर ही बता देते क्या था क्या नहीं। अब पेपर देख लो कैसा पेपर जाएगा। अकाउंट्स का पेपर हो लिया है, अब अकाउंट्स के उससे हो जाओ फ्री। कॉमर्स का पेपर है, उसके लिए पढ़ लो। और जो जो आपके फ्रेंड्स हैं सीबीएसई में उनको बोल दो कि 2026 का जो पेपर है सेम आईएससी 2025 वाला जा रहा है, ठीक है? रिपीट कर रहा हूँ, 2026 का जो पेपर है वो सेम 2025 वाला जा रहा है, ठीक है? एक मिनट, फिर से बोल रहा हूँ, एक मिनट। 2025 वाला, सॉरी, हाँ, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 2025 वाला जो आईएससी का अकाउंट्स का पेपर था वो सेम जाएगा 2026 में अकाउंट्स का सीबीएसई में। और आप लोगों का जो पेपर 2022-2023 वाला था कॉमर्स का वो अब जाएगा 27 फेब 2026 को। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पेपर्स होते हैं जो बोर्ड के दोबारा घूमते हैं, ठीक है? तो ऐसे समझ के चलो, रिपीटिंग्स मारते हैं। चलिए, हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? 6 क्वेश्चंस नोट कर लो, क्वेश्चंस नोट कर लो, याद कर लो, जैसे ठीक लगता है वो कर लो। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? 6 Assertion reasoning. Labeling as a function of marketing act as a silent salesman. Labeling helps in promotion of products by attracting customers and providing required information. हाँ, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. How many rights of consumers are given in the Consumer Protection Act 2019? 6 Labeling is a function of marketing act as a silent salesman. Labeling helps in promotion of products by attracting customers and providing required information. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Grouping of activities based on product line is a part of divisional organization. Grouping of activities based on product line is a part of divisional organization. Which of the following is not true about formal organization? Leaders are chosen. In formal organization, leaders are appointed, not chosen informally. फिर से, how many rights of consumers are given in the Consumer Protection Act 2019? Labeling as a function of marketing act as a silent salesman. Labeling helps in promotion of products by attracting customers and providing required information. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Grouping of activities based on product line is part of divisional organization. Which of the following is not true about formal organization? Leaders are chosen in formal organization. Leaders are appointed, not chosen informally. The process of manning various jobs in the organization with the right person known as staffing. State whether true or false. Planning and controlling are interrelated. True. Planning and controlling are interrelated. Rational barriers is one of the type of barriers in communication. False. नहीं, रैशनल बैरियर्स तो कुछ होता ही नहीं है। एक बार ना इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं फिर से। ये मेरे पास है कॉमर्स का पेपर है 2022 वाला, ठीक है? उसके क्वेश्चंस
एक बार चैप्टर वाइज आ जाएंगे। एक काम करते हैं ना, पहले एक बार चैप्टर वाइज करते चलते हैं, फिर पेपर्स का आइडिया लेते चलते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे, तो वो करते चलते हैं। मिनट पे पेपर्स का आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं हमारे। अगर हमें क्वेश्चन से आइडिया लग जाएंगे तो फिर हमारे लिए सारा समझ आ जाएगा। How many rights of consumers are given in the Consumer Protection Act 2019? 6. Assertion reasoning. Labeling as a function of marketing. Act as a silent salesman. Labeling helps in promotion of products by attracting customers and providing required information. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation. Grouping of activities based on product line is a part of divisional organization. Which of the following is not true about formal organization? Leaders are chosen. In formal organization, leaders are appointed, not chosen informally. In formal organization, leaders are appointed. In informal organizations, leaders are chosen informally. The process of manning various jobs in the organization with the right person is known as staffing. State whether true or false. Planning and controlling are interrelated. Rational barriers is one of the types of barriers in communication. False. Popular brand of toothpaste has 20% discount mentioned on the package. Name the element of promotion. Sales promotion. फिर उसके बाद आ गया हमारा मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोमिनस टर्म्स। डू यू एग्री? गिव रीजंस। नो, मार्केटिंग एंड सेलिंग आर नॉट सिनोमिनस। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ एक बार देखते चलो, सारा फोकस इन पे करते चलो, आपको सारे ये इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोमिनस टर्म्स। डू यू एग्री? गिव रीजंस। नो, मार्केटिंग एंड सेलिंग आर नॉट सिनोमिनस। Marketing focuses on customer needs, selling focuses on product. Marketing starts before production, selling starts after production. Marketing aims at customer satisfaction, selling aims at profit through sales volume. State 2 qualities of good leader: integrity, good communication skills. Give 2 objectives of communication: to facilitate coordination, to ensure effective functioning of organization. State 2 reasons to emphasize the importance of controlling: helps in achieving organization goals by correcting deviations, ensures efficient use of resources. Employees formed a dramatic club. Name the type of organization and state one feature. Type: informal organization. वैसे हो गया, normally formally नहीं है. It is formed voluntarily based on common interest. What is a prerequisite to selection? Selection में selection process important है. Which function ensures that right person at the right job? Recruitment and staffing. Which function is referred to as the essence of management and binds all the functions? Planning. Directing is called the essence of management. Planning नहीं होता is called the, नहीं, controlling is called the essence of management. It ensures that plans are implemented effectively by guiding and motivating. Demand for leather derived from leather purposes. Category: industrial products. These 3 characteristics: derived demand, fewer buyers, bulk purchases. ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़ हम जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 10 करोड़ से ऊपर की लिमिट है हमारी, क्या कहते हैं, नहीं, 1 करोड़ तक की लिमिट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की लिमिट है 1 करोड़ से 10 करोड़ की, और फिर उसके ऊपर नेशनल की, है ना। वाई इज डेलीगेशन एंड इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल? रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। ठीक है सर, अकाउंट्स में कैलकुलेटेड 35 फॉर्मेट मार्क मिलके 40s में आस्ट कॉम और इको का पेपर डिफरेंट आएगा। एक्चुअली अदिति, कॉमर्स का और इको का पेपर ना इस बार डिफरेंट जा सकता है, क्योंकि अकाउंट्स का डिफरेंट नहीं गया। ऐसा होता है हमेशा कि कोई एक पेपर घूमता है, तो अकाउंट्स का पेपर बहुत सीधा गया है हमारा। कॉमर्स का और इको का आई थिंक डिफरेंट जाएगा। प्लीज़ तो आप प्रिपेयर करके चलो। आई एम डैम श्योर कि कॉमर्स और इको का इस बार डिफरेंट जाना चाहिए, तभी मैं इसीलिए पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने का चांस है कॉमर्स और इको का। अकाउंट्स का इजी पे चला गया है, कॉमर्स और इको का डिफरेंट जा सकता है, प्लीज़ तो पढ़ लो। एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग से स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उसका मीनिंग याद रखना। स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला, एक सेकंड, सीबीएसई की क्या न्यूज़ है? ओहो, यार, नो चेंज इन क्लास 10 मैथ्स पेपर पैटर्न। चलिए, पेपर्स ना अब अकाउंट्स का जाने के बाद मुझे आईएससी का लग रहा है कि यार इको और कॉमर्स का डिफ़िकल्ट हो सकता है। इट शुड बी टेक्निकल मोर देन
टेक्निकल से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल। अकाउंट्स में क्वेश्चन 5 में गुडविल का वैल्यू गलत हो गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कॉन स्टॉक कंसिडर ही नहीं किया, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेक्ट है, तो 3 में से कितने मार्क्स मिल बनाएंगे? अद्विका, इट डिपेंड्स कि हो सकता है आपको 2.5 या 2 तक तो मिनिमम मिल ही जाएंगे, बट अगर टीचर पे डिपेंड करता है तो 2.5 भी मिल सकते हैं। चलो बेटा, अब कॉमर्स की बात है। Why is delegation an important management tool? Reduces workload of managers, develop managerial skills of subordinates, improves efficiency, facilitates quick decision making. फिर एक आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छे से करके जाना। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन सुपीरियर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से। मैनेजमेंट फोकसेस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, हाउ दे जनरेट सेल्स, सेलिब्रिटी प्रेजेंस, क्रिएट पब्लिसिटी, पब्लिकेशन। हाँ, नॉर्मल से हैं। एक सेकेंड, अभी मैंने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला डाला था, ये रहा। एक ना कॉमर्स में चैप्टर्स ध्यान रख लो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक बैंकिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो सब प्लीज़ ध्यान से एक बार पढ़ के चलिएगा। बैंकिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के चैप्टर्स में आप लोगों को डाउट बताओ किस किस में है? फाइनेंस वाले इंपॉर्टेंट हैं, एक वो बिजनेस इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बैंकिंग, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैनेजमेंट है ना उसको बहुत अच्छे से करना। मैनेजमेंट ऐसी है, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार, ठीक है ना? तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान से इम्पोर्टेंट लेके चलो, जो जो आपको लगती हैं कि हाँ आनी है, इनके तो रट्टे मार लो। सेकंड बेटा, मेरे को ना ये श्योरिटी इस बार है बहुत ज़्यादा कि जो पेपर है वो 22-23 वालों से ही मिक्स होके चल रहा है। जो 2026 का पेपर आएगा वो 2022 और 2023 का मिक्स होएगा, कॉम्बो। मतलब उसी बेस के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, उसी बेस वाले सब कुछ है, उनको फोकस ले लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, अब 1 मिनट क्विक रिवीजन नोट्स में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, protection against unfair, exploitative and unscrupulous trade practices includes consumer awareness, legal protection, grievance redressal. Consumer education requires judicial machinery, active consumer participation, consumer organizations. Meaning of consumer protection: protection against unfair, exploitative and unscrupulous trade practices includes consumer awareness, legal protection, grievance redressal. Consumer education requires judicial machinery, active consumer participation, consumer organizations. एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कीवर्ड्स पे, जितना आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सको ना वो करना। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन: सेल्फ हेल्प, बी इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर, कंपेयर प्राइजेस, रीड लेबल्स, चेक वारंटी, नो राइट्स एंड ड्यूटीज। लेजिस्लेटिव मेजर्स, गवर्नमेंट लॉ, सेल्फ सेफ्टी, ये वैसी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गई फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर्स राइट कौन कौन सी हैं? 6 राइट्स हैं कंज्यूमर्स की, अब इंपॉर्टेंट है। चलो, कौन बता सकता है कंज्यूमर राइट्स कौन कौन सी हैं? कंज्यूमर की राइट्स कौन कौन सी हैं? कंज्यूमर की राइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस है आने का। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सी हैं कंज्यूमर की राइट्स? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर से एक बार, कंज्यूमर की राइट्स कौन कौन सी हैं? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 6 राइट्स हो गई फटाफट। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन।
हु कैन फाइल, 6 राइट्स हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 6। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक redress, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? अ कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एजुकेशन एसोसिएशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, लीगल हेयर इफ कंज्यूमर डाइज, पेरेंट गार्डियन इफ कंज्यूमर इज माइनर। एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या एक एनजीओ है? आप लोगों ने अपना आंसर बताना कमेंट्स में। एक एनजीओ है, क्या एक एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में फाइल कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकता है, हाँ या नहीं, ये बताओ। एक एनजीओ है, क्या एक एनजीओ कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे, हाँ या ना? सर एक और चीज़, अकाउंट्स में क्वेश्चन 10 के थर्ड में क्लोजिंग जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट लिख दिया, तो कितना मिल सकता है? वैल्यू ऑफ रेंट करेक्ट लिखा था, P&L टू रेंट थी ना, तो हाफ मार्क कटेगा, क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग बननी थी वो P&L टू रेंट बननी थी। अगर आपने P&L टू वो पास कर दी तो थोड़ी सी गलत हो गई, बट P&L टू रेंट बनना था उसका, तो हाफ मार्क्स कट सकता है बस उसका। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी थी। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक redress, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एजुकेशन एसोसिएशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, लीगल हेयर इफ कंज्यूमर डाइज, पेरेंट गार्डियन इफ कंज्यूमर इज माइनर। हु इज अ कंज्यूमर? पर्सन हु बाय गुड्स सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर रीसेल और अ कमर्शियल पर्पस। ठीक है, इसमें रिड्रेसल एजेंसीज में 3 टायर सिस्टम याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 1 करोड़ तक केसेस जा सकते हैं। अपील टू स्टेट कमीशन करनी है विद इन 45 डेज, स्टेट कमीशन की है विद इन 30 डेज। नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़, अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 10 डेज, विद इन 30 डेज। हमने ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करनी है अप टू 1 करोड़, अपील टू स्टेट कमीशन करनी है विद इन 45 डेज, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़, अपील टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज, नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़, अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। Consumer court can order removal of defect, replacement, refund, compensation, punitive damages, stop unfair trade practices, withdraw hazardous goods, pay amount to consumer welfare fund. Responsibilities of consumers: be aware, buy standard goods, read labels, ask for cash memo, file complaint if needed, avoid black marketing, respect environment. इसमें ये important है, दोनों एक्ट्स की डिफरेंसेस भी। तो प्लीज़ बच्चों एक बार ये ध्यान से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है प्लीज़ करते चलो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी मुझे पता है सब लोग अकाउंट्स के पेपर के बाद से भी किसी ने तैयारी शुरू भी नहीं करी होगी, रिवीजन शुरू नहीं करी, सब कल से करेंगे, ठीक है। पर अकाउंट्स कॉमर्स का और इको का पेपर बहुत टेक्निकल जा सकता है, तो प्लीज़ उस हिसाब से तैयारी कर लो कर लो कर लो, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आके फिर मैं मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स के लूँगा, या मैं पहले ना केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊँगा, क्योंकि इस बार पेपर में केस बेस्ड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।